واپس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، ان کا درجہ تو اور بھی بڑا ہے، وہ بھی آئیں گے۔ ایسا خیال بھی لوگوں کے اندر ڈالا اور لوگ صحیح سمجھنے لگے کہ واقعی بات تو جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو ہمارے نبی کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے نبی نہیں آئیں گے، قرآن حدیث سے اس کا کئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ہے قرآن حدیث سے، تو ہم وہی بات کہیں گے۔ لیکن انہوں نے عقیدہ بگاڑنے کے لیے نئے نئے باتیں جو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن جو ہے فتنہ برپا ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو جو ہے دارالخلافہ، جو مدینہ تھا، جو ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں کا کیپٹل تھا اسلام کا، اسلامی ممالک کا کیپٹل تھا مدینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے نکال کر کے اس کو کوفہ میں بنا دیا کہ یہاں کا معاملہ، وہ کوفہ میں بنایا تو یہاں کے معاملہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں جا کر کے کوفہ میں جو انہوں نے بنایا۔ اب کوفہ میں جو ہے شیعان علی، جو علی کی جماعت کہلاتی تھی، ہم علی کو چاہنے والے ہیں، ہم علی کے لیے ہم جماعت والے ہیں، علی کو چاہنے والے ہیں، ہم علی کے لیے جان دیں گے، لیکن علی کی جان ہی انہوں نے لے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ میں دارالحکومت بنائی گئی، مدینہ سے نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، وہاں کوفہ کو کیپٹل بنایا، لیکن وہاں پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ معاملہ جو ہے ذرا مختصر بات کر رہا ہوں میں، اگر یہ لمبا بولنا تو ایک ایک کا قصہ بھی کتنی دیر بول سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ کر کے آگے جا رہا ہوں کیونکہ بات گھنٹے میں ختم کرنا ہے، گھنٹے سے زیادہ کاٹا آگے نہیں جانا ہے، تو اس انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گھنٹے میں جو ہے بات کو ختم کروں گا، سمجھے۔ اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگیں ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں سے جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے، یہ جو ہے سبائی گروپ والوں نے، یہ جو ہے طرح طرح سے اختلافات لوگوں کے اندر پیدا کر کے گمراہی میں ڈالنے کے لیے، دونوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، ادھر کی بات جا کے ادھر بنا، نئی سو باتیں لگا کر کے دونوں میں لڑائی پیدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے نام سے ایک جنگ ہوئی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں تقریباً 10,000 مسلمان جو ہے مارے گئے، دونوں طرف بھی مسلمان ہیں، لیکن غلط فہمی ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوئی، یہ مذہب کی بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوئی، یہ ایک سیاسی لڑائی تھی۔ غلط فہمی دونوں کو ہوئی تھی، حضرت عائشہ کو بھی اور حضرت علی کو بھی، دونوں کو بھی جو ہے غلط فہمی میں جو ہے لوگوں نے مبتلا کیا، اور وہاں پر جو ہے جنگ چھڑ گئی۔ لوگوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پیروں پہ مارو، جب تک جو ہے یہ اونٹ سے نہیں اتریں گی یہ جنگ نہیں رکے گی۔ کسی نے ان کے اونٹ کے پیروں پہ مارا، حضرت عائشہ نیچے اتری، جب جو ہے وہ جنگ تھمی تو 10,000 مسلمان میرے بھائی اس میں شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے بیچ میں جنگ صفین کے نام سے جنگ صفین ہوئی، 5 سال تک دونوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہی۔ مسلمان ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ جنتی، لیکن غلط فہمی میں انسان جو ہے، ہر آدمی جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 5 سال تک جنگ ہو رہی تھی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب معاملہ ہم کمپرومائز کا بات کریں گے، یہ لڑائی بہت لمبی ہو گئی ہے، بڑا طول کھینچ رہا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں، اس کو جو ہے ہم 2 فریق جو ہے مان لیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک آدمی آپ کی طرف سے اور ایک آدمی میری طرف سے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، دونوں کو ہم حاکم مانیں گے۔ حاکم مطلب جج مانیں گے۔ جج ماننا کفر نہیں ہے، جج ماننا شرک نہیں ہے، جج ماننا بدعت نہیں ہے۔ جج کوئی نہ کوئی جو ہے جھگڑا جب دونوں میں ہوتا ہے تو تیسرا جو ہے ایک فیصل ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر حضرت علی نے دونوں کو کیوں رکھا؟
दोनों को क्यों रखा? दोनों को इसलिए रखा कि एक तरफ का रखेंगे तो फैसला उसी की तरफ हो सकता है, लिहाजा दोनों की तरफ से एक जो है अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक जो है दूसरे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों को हाकिम बनाया। कहा कि ये दोनों जो फैसला करेंगे हम दोनों मान लेंगे। हजरत मुआविया से हजरत अली ने कहा, मुआविया इस पर राजी हो गए। जब ये हुक्म दिया तो हजरत अली के साथ में जो लोग थे, जो हजरत अली के साथ में थे, अल्लाह अकबर, उन्होंने नौजुबिल्लाह कहा कि हजरत अली काफिर हो गए, हजरत अली काफिर हो गए। ये खारजी थे, खारजी नबी निकलने वाले हैं। तो हजरत अली नौजुबिल्लाह क्या है? काफिर का फतवा दे दिया। क्यों? क्योंकि हाकिम अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म चलेगा। इन्होंने मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को हाकिम बनाया, ये कुरान के खिलाफ है, लिहाजा जो है हजरत अली काफिर। तो वो हजरत अली की जमात से निकल गए। अब क्या हुआ वहां से? ये जो निकले इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पेशनगोई दे दिए थे कि खारिजी, ये इस्लाम से खारिज, ये खारिजी आज भी आपको मस्कत के अंदर आपको एक खारिजी मिलेंगे। ओमान जो मुल्क है मुसलमानों का, वहां पर आपको एक खारिजी मिलेंगे। ये खारिजी हैं, वो इस्लाम से खारिज हो गए। अब उसके बाद में ये जो बचे ये शिया ने अली को चाहने वाले। तो फिर इसके बाद में उन्होंने फैसला किया कि ये तीनों फसाद की जड़ है, ये तीनों का काम पूरा कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। तीनों को, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक साद बिन अबी वक्कास, ये तीनों को जो है एक ही दिन में वार करके खत्म करने का उन्होंने प्लानिंग बना ली। और जो है उस दिन इत्तेफाक से साद बिन अबी वक्कास, जब सुबह में वो लोगों की प्लानिंग क्या थी, जब सुबह फजर की नमाज को ये लोग निकलेंगे तो इनके ऊपर वार करेंगे। तीनों की जगह तीनों को जो है मुतय्यन कर दिया गया कि ये हजरत अली को मारेगा, ये साद बिन अबी वक्कास को मारेगा और ये अबू मूसा अशरी को मारेगा। अब तीनों तीन जगह ताक में बैठे हुए हैं, जैसे ही वो लोग निकलेंगे उन पर वार करेंगे। लेकिन साद बिन अबी वक्कास बहुत बीमार थे, उस दिन वो नमाज के लिए बाहर नहीं निकल पाए, तो उनको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए निकले, उनके ऊपर वार किया गया, लेकिन वो अपने आप को बचाए, लेकिन फिर भी कमर पे जो है वो खंजर कमर को छूता हुआ जो है वो निकल गया। बहरहाल जख्मी हुए, लेकिन जो है उनकी जान नहीं गई। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, नमाज पढ़ाने के लिए फजर की घर से निकले, उनके ऊपर वार किया गया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत वाक़ई। ये कूफा वाले, इसीलिए कहा गया, किसी ने कहा कूफी ला यूफी, ये कूफी कभी वफा नहीं करेंगे, ये बेवफाई करने वाले, ये धोखा और दिखावे की मोहब्बत कर रहे थे, अंदर से दुश्मनी थी, अंदर से दुश्मनी थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद हजरत हसन को खलीफा बनाया गया, हजरत हसन को खलीफा बनाया गया। हजरत हसन भी हजरत मुआविया से लड़ने के लिए निकले, हाँ लड़ने के लिए निकले, लेकिन जब लड़ने का मामला आया, अब जंग तो चल रही थी, मामला खत्म नहीं हुआ था, अब बाप शहीद हो गए, अब बेटा जिम्मेदारी लेना है, लेकिन बेटा लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता था, लेकिन लोगों के कहने पे वो मजबूरन लड़ने के लिए लश्कर को लेकर के निकले। लेकिन रास्ते में जो है ऐसी बात सुनने में आई कि ये ले जाकर के जो है हजरत हसन को मुआविया के हवाले कर देंगे, मुआविया इनको गिरफ्तार कर लेगा, या तो इनको कत्ल कर लेगा, या फिर कुछ भी गुलाम बनाएगा, कुछ भी करेगा। ये प्लानिंग थी वो लोगों की। वो बात जब इनके जहन में आई तो कहा कि उन्होंने जंग से जो है वो रुक गए, जंग से रुक गए। बहरहाल वो दोनों के बीच में जंग नहीं हुई। अब जो प्लानिंग समझ में आ गई इन लोगों की, एक ना एक दिन ये लोगों को ले जाकर के वहां दे देंगे, हवाले कर देंगे मुआविया को। मुआविया तो है मुझे या तो कत्ल करेगा, या फिर जो है मुझे कुछ सजा देगा, कुछ ना कुछ जो है मुझे कैद करेगा, कुछ भी करेगा। लिहाजा ये झगड़ा फसाद नहीं होना, उन्होंने फैसला किया कि जो है हजरत मुआविया को लेटर लिखा कि मुआविया मैं तुम्हारे हाथ पर दस्तबरदार होना चाहता हूं, अपनी खिलाफत तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूं। हजरत मुआविया लेटर लिखे, बोला कंडीशंस क्या है, शराइत क्या है,
कुछ शरायत उन्होंने लिखे, जिसमें से एक शर्त ये थी कि मैं मेरे मरने के बाद में हमारे घर वालों को सालाना 1 लाख रुपया जो है वो बैतुल माल से आप जो है देंगे, मतलब हुकूमत की तरफ से 1 लाख रुपया घर का खर्च देंगे। और 1-2 शरायत थे, तो बहरहाल वो शरायत के साथ जो है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन शर्तों को कबूल कर लिए और कहा कि ठीक है। अब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से आए कूफा को आए। ये कूफा की मस्जिद में जो मस्जिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाई थी, उस मस्जिद में वो मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद का मेंबर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो इलाका हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनके बाद उनका बेटा खलीफा बना, वो मेंबर भी उसका, वो मस्जिद भी उसकी। हजरत अली अपने बाप की मस्जिद में हजरत मुआविया को बुलाए और जो है बुला करके जो है बाप के मेंबर पे, बाप की मस्जिद में बाप के मेंबर पे हजरत मुआविया को बिठाया। किसने? हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और आते वक्त अपने भाई हुसैन को भी साथ में लेकर के आए और अपने कमांडर इन चीफ को भी लेकर के आया, जो कैस उनका नाम था, वो कमांडर इन चीफ था, उसको भी बुला कर लाए मेंबर पे हजरत मुआविया को बिठाए और खुद नीचे बैठे। हजरत हसन भी नीचे बैठे हैं, हजरत हुसैन भी नीचे बैठे हैं। कहा मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। सबसे पहले हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर खलीफा की हैसियत से बैत किए कि मैं आपको खलीफा मानता हूँ। उन्होंने बैत किया, करने के बाद फिर अपने भाई की तरफ देखा, हुसैन उठो और बैत करो मुआविया के हाथ पर। हजरत हुसैन उठ करके जा करके जो है देखे और उन्होंने भी बैत कर लिया। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर हजरत हुसैन बैत कर रहे हैं। अब उसके बाद हजरत हसन ने कमांडर इन चीफ को कहा कि उठो तुम आकर के जो है बैत करो। अब वो जरा फौजी था, कमांडर था, जरा फौजियों का दिमाग जरा जल्दी समझ में नहीं आती बात, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, फौरन समझ में नहीं आती। वो सोच रहा था कि मैं ये मुआविया के हाथ पे कैसे बैत करूं, इनके खिलाफ तो मैं लड़ते रहा हूं, जंग के मैदान में इनके खिलाफ मैं लड़ते रहा हूं, आज इनके हाथ पर मैं बैत कैसा करूं, इनको खलीफा कैसा मानूं। सोच में पड़ गया। हजरत हुसैन की तरफ देखा, हजरत हुसैन शायद कुछ और हुक्म दे। देखा हजरत हुसैन ने कहा कैस क्या देख रहे हो, जिसके हाथ पे मेरा भाई बैत किया और जिसके हाथ पे मैं बैत किया, जाओ उसके हाथ पे तुम भी बैत करो। वो भी आकर के बैत किया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। 20 साल तक शियों को दबा के रखा, 20 साल तक, जब तक हजरत अमीर मुआविया जिंदा थे शिया गर्दन नहीं उठा सकते। शियों के पूरे चालों को, उनकी हरकतों को, उनकी ताकतों को जो है दबा के रख दिए थे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कोई आवाज नहीं उठाता था। इस तरह से जो है हुकूमत उन्होंने चलाई। अब उसके बाद जब उनकी वफात हुई तो उन्होंने यजीद को खलीफा बनाया। यजीद जो उनका बेटा, यजीद को खलीफा बनाया। अब असल झगड़ा यहाँ से शुरू होता है। असल झगड़ा अब यहाँ से करबला का मामला यहाँ से आपको मिलेगा। अब हजरत हुसैन और हजरत यजीद का मामला ये शुरू से क्यों लाया, ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आए। हमारे करबला का वाक़या 4-4 घंटे का वाक़या नहीं है, ये जो है इंशाअल्लाह 5-10 मिनट में खत्म होता है। लेकिन बात को समझाने के लिए मैं शुरू से लेकर के आया मुख्तसर तौर पे। अब जब यजीद को खलीफा बनाया तो यजीद ने तमाम शहरों में, तमाम जो है सूबों के अंदर ये इतला भेज दी कि उसके ऊपर जो है बैत करना है। सबको ये इतला, सब पूरे गवर्नरों को ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया, ये लेटर्स पहुंच गए कि यजीद को खलीफा मानना है, उसके हाथ पे बैत करना है। तो मदीने के गवर्नर को भी वो लेटर आया। मदीने के गवर्नर ने सारे लोगों को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो अब यजीद जो है खलीफा बन गया है, लिहाजा तुम सब जो है यजीद को जो है खलीफा मानना, बैत करना है। हजरत हुसैन भी वहाँ थे, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हजरत हसन भी जो है, हजरत हसन की भी मौत हो गई, हजरत हसन की भी मौत हो गई। उनको भी जो
जो है शहीद करने की बहुत कोशिश की, बहरहाल उनको भी जो है मारने का ये किया, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हर एक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हजरत हसन की भी मौत हो गई। अब हजरत हुसैन है वो आए, वो आने के बाद में वो गवर्नर ने कहा कि यजीद के हाथ पे जो है बैत करना है, तो हजरत हुसैन ने कहा देखिए अभी हमारे को हजरत मुआविया की वफात की इत्तला अभी मिली, अभी हमारे को ये इत्तला मिली कि उनकी वफात हुई है और यजीद के खलीफा बनने की भी इत्तला अभी मिली है, हमारे को सोचने का टाइम दो, बैत करने के लिए हमारे को सोचने का कुछ टाइम दो। गवर्नर ने कहा कि टाइम वगैरह कुछ नहीं है, ये बैत करना ही है। तो कहा ठीक है सुबह तक मेरे को कम से कम टाइम दो, सुबह तक। तो कहा कि ठीक है, सुबह तक टाइम दिया गया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, और रात की तारीख को गनीमत समझते हुए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से मदीने से निकले मक्के के लिए। रात में मदीने से निकल करके मक्का आ गए। मक्का में आकर के देखा, वहां पर लोगों को मालूम हो गया कि हुसैन मदीने से निकल करके मक्का आए हैं, कूफियों को इत्तला मिली। अब कूफी लेटर लिखना शुरू कर दिए, कूफियों के लेटर सारे, ऐ हुसैन आप आ जाइए, हम आपको खलीफा मानेंगे, हम यजीद को खलीफा नहीं मानते, हम आपके ऊपर आपके हाथ पे बैत करेंगे, हम आपको सरदार मानेंगे, आपको खलीफा मानेंगे, आपको अमीर मानेंगे। आप जो है मक्का से निकल करके आप कूफा आ जाइए। एक खत आया, दो खत आया, हर रोज खत आ रहे, इतना है कि जो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बोरी जो है वो भर गई खतों से। 18,000 खतूत आए, 18,000 खतूत आए कि हम तुम्हारे हाथ पे बैत करेंगे, हम आपको खलीफा मानेंगे। तो वो देख करके उन्होंने समझा कि चलो मामला जो है कुछ ये है, जाने का इरादा किया। कूफा को जाने का हजरत हुसैन ने इरादा कर लिया। लोग मना कर रहे कि मत जाइए, वो कूफी कभी वफा नहीं कर सकते, आप वहां मत जाइए, मत जाइए। लेकिन वो सुन रहे नहीं, इतने लोगों ने खत लिखा है तो जो है मैं उनका ख्याल करना चाहिए, लिहाजा मुझे जाना चाहिए। जाने का उन्होंने इरादा किया, लेकिन जो है कुछ लोगों ने कहा एक काम करें, आप जाने से पहले आप एक कासिद को वहां पर भेजिए, वहां के हालात कैसे हैं, सिचुएशन कैसा है, ये देख करके जो है वो हमारे को इंफॉर्मेशन देगा, हालात सही है तो हम जाएंगे। तो लिहाजा मुस्लिम बिन अखील जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा, वो मुस्लिम बिन अखील चचा का बेटा, मुस्लिम अखील के बेटे मुस्लिम बिन अखील, उनको पहले वहां पर कूफा भेजा, जाकर के देखो कि सिचुएशन क्या है। देखा सिचुएशन देखा तो वहां पर 32,000 लोगों ने, कितना 32 या 33,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत किए, जीने मरने की बैत किए। हम हुसैन को खलीफा मानते हैं, इस बात के लिए हम आपके ऊपर बैत कर रहे हैं, हजरत हुसैन को हम खलीफा मानने के लिए तैयार हैं, इस बात पर हम आपके ऊपर जो है आपके साथ देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपकी हिफाजत करेंगे, हजरत हुसैन को खलीफा बनाएंगे, हजरत हुसैन की हिफाजत करेंगे। ये बैत करे, खस्मा खाए। तो देखा सिचुएशन बड़ा अच्छा है। मुस्लिम बिन अखील वो क्या, दिल के भेदों को कौन जानता, दिलों के भेदों को अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। उन्होंने देखा कि मामला सारे लोग हमारे फेवर में है, तो फौरन जो है वो इत्तला भेज दिए, इंफॉर्मेशन भेज दिए कि हुसैन यहाँ मामला जो है पूरा फसल पकी है, बस आकर के काटने का काम है, आइए और फसल काट लीजिए, पूरा तैयार है, सारा पूरा जो है कूफा हमारे फेवर में है। इतने हजार लोगों ने बैत किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन इधर हुआ। अब ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में ये निकलने का इरादा किए, लेकिन लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत उस्मान हजरत हुसैन के चचा भी है, नबी के चचाजाद भाई है, नबी के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह इनको जो है दीन की समझ अता फरमा, कुरान की फहम इनको अता फरमा, दुआ की थी। और दूसरी चीज ये हजरत हुसैन के जो है चचा भी थे। और तीसरे हजरत अली के दारुल खिलाफत में, हजरत अली के खिलाफत में ये गवर्नर की हैसियत से उन्होंने काम किया था। वो दौड़े हुए आए, पता
پتا چلا کہ حسین جو ہے کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے دوڑ دوڑ کے آئے، آ کر کے ان کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی۔ حسین کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کس دن جانے کا ارادہ کیا؟ وہ دن 8 ذی الحجہ کا دن تھا، 8 ذی الحجہ کا دن، 8 تاریخ 8 ذی الحجہ۔ یہاں پر جو حج کیے ہیں کوئی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کے دن کیا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ لوگ مکہ میں حج کا احرام باندھ کر کے مینا کو جاتے ہیں، تو مکے سے اس دن سارے لوگ حج کا احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن جو ہے کوفہ جانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگ حج کو جا رہے ہیں اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا چاچا میں جو ہے کوفہ جا رہا ہوں، وہ کوفیوں نے مجھے بلایا ہے، کوفیوں نے مجھے بلایا ہے، میرے باپ کے شیعوں نے مجھے بلایا ہے، میرے باپ کی جماعت والوں نے مجھے بلایا ہے، مجھے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تیرے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کیے، تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کیے، وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، بیٹا نہیں جانا۔ کہا چاچا اب تو مجھے رکنا نہیں ہے، میں جانا تو ضرور ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے ضرور جانا چاہیے۔ تو کہا اگر تو اس بات سے راضی ہوتا کہ اگر میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا تو رک جاتا، تو میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر بھی کہا کہ چاچا اب آپ مجھے کوئی جو ہے سمجھانے کی کوشش مت کیجئے، میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے اور میرے قدم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، مجھے جانا ضرور ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے، میری پیشن گوئی سن لے، میری پیشن گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے اندر جو ہے خون کو دیکھ رہا ہوں، تیری داڑھی کے اندر میں خون کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر بھی وہ نہیں مانے، نکل گئے۔ راستے میں پھر انفارمیشن آیا حضرت مسلم بن عقیل کو، وہ جو ہے جیسا ہی وہاں کوفے کے حالات خراب تھے تو یزید نے کوفے کے گورنر کو بدل دیا، جو وہاں کا گورنر تھا اس کو نکال کر کے نئے گورنر کو بھیجایا، اور نیا گورنر کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد نیا گورنر بن کر کے وہ گھوڑے پر آ رہا ہے، وہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ عرب لوگوں کا دستور تھا، جیسا کہ یہاں پر بھی جو ہے دھول دبے سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے، اس طرح سے بات کرتے، اس کو ڈھٹا باندھنا ہوتے، تو وہ ڈھٹا باندھ کر کے وہ عبید اللہ بن زیاد سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ اب کوفے کے اندر پہنچا، کوفے کے گلیوں سے اور کوفے کے بازاروں سے وہ گزر رہا تھا، تو کوفے کے اندر سب کو اس بات کی اطلاع تھی کہ حضرت حسین آنے والے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے، کیونکہ وہ ڈھٹا باندھا ہوا تھا، چہرہ نہیں پہچان سکتے لوگ، تو یہ حضرت حسین سمجھ کر کے سب لوگ سمجھے مرحبا بکم، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے سلامتی ہو تمہارے اوپر، سب لوگ سلام کر رہے ہیں، اور یہ گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین آ گئے، اور گورنر ہاؤس پہ یہ پہنچا تو یہ سارے لوگ جو 32,000 مرد جو بیعت کرے تھے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، وہ سارے کے سارے گورنر ہاؤس کے پاس جو ہے وہ جمع ہو گئے، اس ارادے سے کہ حضرت حسین آئے ہیں، ان سے ملیں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ وہ آئے، جب وہ ڈھٹا کھولا، وہ گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھا اور اپنے چہرے سے ڈھٹا نکالا، تو لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ تو حسین نہیں، یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، ہم اس کو حسین سمجھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ سب لوگ یہاں سے کھسک جاؤ، سب لوگ یہاں سے کھسک جاؤ، ورنہ تمہارے بیویوں کو بیوہ بنا دوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا۔ ایک حکم، اور اس کے ساتھ 18 لوگ تھے، بس سپاہی کتنے تھے؟ 18 سپاہی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، اور ادھر کتنے ہیں؟ 32,000۔ 32,000۔ اب 32,000 اگر مقابلہ کرنا چاہے تو وہ 18 کدھر؟ اور اس وقت جو ہے معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ
पुलिस वालों के पास आज जो है मशीन गन भी है और बंदूक भी है, रिवॉल्वर भी है और जो है तरह तरह के जो है वो टेक्नोलॉजी साथ है कि आदमी यहाँ बैठ करके उतनी दूर से आदमी को मार सकता है, लेकिन उस वक्त हथियार नहीं। और आज क्या है, हुकूमत वाले के पास ही हथियार रह सकती, पुलिस वाले के पास ही बंदूक रह सकती, आम आदमी के पास बंदूक नहीं रह सकती। लेकिन जब क्या था, सिपाही के पास भी तलवार है और अवाम के पास भी तलवार है। अवाम को तलवार रखने से वो रोक नहीं सकती थी हुकूमत, ये पाबंदी नहीं थी हथियार रखने के लिए। हर एक घर में हथियार होता था, सबके पास हथियार है, फिर भी उसकी एक धमकी से वो दिया कि तुम्हारे बीवियों को बेवा बना दूंगा, बच्चों को यतीम बना दूंगा, एक धमकी देना था। मुस्लिम बिन अकील पलट के देखे तो 32,000 में से 3200 बच गए। 32,000 में से 3200 लोग बच गए। अब लोगों ने कहा इसको पढ़ो, ये गवर्नर को पढ़ो। उन्होंने कुछ हिम्मत करने की कोशिश की तो उसने हुक्म दिया, फिर से धमकी दे दी। फिर से जब धमकी दे दी तो 3200 में से सिर्फ 32 बच गए, सिर्फ 32 बच गए। बताया जाता अब वो 32 लोगों को लेकर के मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, पीछे पलट के देखे तो वो 32 भी रह गए। तने तन्हा मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया गया। वो 25,000 लोग जो जीने मरने की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे चले अकेले। अब उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि अरेस्ट करो इसको। अब सिपाही इनके पीछे, वो कूफा नया शहर, गली नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, ये भाग रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, अंदर से आदमी दरवाजा खोला, मुस्लिम बिन अकील को देखा, उसने बैत किया हुआ था, चेहरा देखते ही दरवाजा लगा दिया। कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं। दूसरा दरवाजा खटखटाया, दूसरा दरवाजा खोल के बंद कर दिया गया, कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रात की तारीकी है, तारीकी में जो है ठोकर लगी, नीचे गिर गए, चीख निकली। एक बुढ़िया ने आवाज सुनी, बुढ़िया आई, देखा देखा तो कौन है, ये तो हुसैन का हरकारा है, हुसैन का भेजा हुआ, हुसैन का भाई है। ये इस तरह से मजलूम बन करके पड़ा हुआ है। इतने लोगों ने जो है जीने मरने की इसके साथ बैत की, कसमें खाई, इसका साथ देने की बात की, लेकिन आज इसका ये हाल है, ये मर रहा है, ये मरते पड़ा हुआ है। नीचे गिर गए, दांत टूट गए और खून जो है फव्वारा निकल रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है। वो बुढ़िया जो है उठा करके ले गई और वो कुछ कपड़ा वगैरह चला करके वो जो है खून को जो है रोक दी और उसको ला करके जो है मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छुपाया, एक कमरे के अंदर रखा, छुपा दिया। तो वो बुढ़िया का बेटा आया, कहा अम्मा क्या बात है, खटखट सी आवाज आ रही थी, कुछ आवाज सुनने में आई। कहा कि बेटा कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं। नहीं अम्मा मैं तो सुना हूँ कि कुछ आवाज आई है, किसी की आवाज मुझे सुनाई दी। बोला ये तेरा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं अम्मा मैंने सुना है। बहरहाल वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया, देखा तो मुस्लिम बिन अकील बैठे हुए हैं और देखा, देख करके माँ परेशान हो गई, आंखों से आंसू आ रहे। अब बेचारा इस बेचारे को मार डालेंगे। कहा दुश्मनों क्यों उसको मारते हो, क्यों तुम लोग कसम खाई तुम उसका साथ देने के लिए, बात कर रहे हाथ पर जो है कि हम जीने मरने के साथ तुम्हारे साथ देंगे, मौत में साथ देंगे, जीने में साथ देंगे। आज उसके जान के दुश्मन बने हुए हो। कहा अम्मा मैं कहाँ जान का दुश्मन हूँ, आज तो हमारे किस्मत, हमारे भाग फूट गए, आज हमारे भाग जाग उठे कि मुस्लिम हजरत हुसैन का हरकारा हमारे घर के अंदर आया है। आज हमारे घर की तो जो है किस्मत जाग गई, इतनी बड़ी किस्मत कि जो है नबी का नवासा, वो जो है हमारे नवासे का भाई हमारे घर में आया है। मैं इनको क्यों करूंगा, मैं तो जानवरों के पैर चूमने वाला, तो उनके पैर चूमने लगा, उसके हाथ चूमने लगा मुस्लिम बिन अकील के। कहा देखिए मैं इनका जान का दुश्मन नहीं हूँ, ये हमारे घर में आए, हम इनकी हिफाजत करेंगे। माँ खुश हो गई, चलो कम से कम बेटा मेरा बात समझ गया। कुछ देर हुई, बेटा वजू करने लगा, वजू करने लगा। माँ पूछा बेटा क्या बात है, अभी फजर का वक्त हुआ नहीं, तू जो है वजू करने लगा। कहा नहीं अम्मा आज जो है नबी का हरकारा, नबी के नवासे का हरकारा हमारे घर आया, शुक्राने के तौर पे जो है आज तहज्जुद पढ़ने का इरादा हो रहा है। तो माँ और खुश हो गई, चलो बेटा
वजू बना लिया, बनाने के बाद कहा अम्मा मुझे मस्जिद में जाके पढ़ने का दिल करता है। तो कहा ठीक है मस्जिद में जाकर ही पढ़ ले। तो वो मस्जिद में नहीं गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गया, जाकर के बोला कि तुम्हारा शिकार को मैं घर में फांस के रखा हूँ, आके गिरफ्तार। आए मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। वो मरने से पहले